डिलीट का मैं आपको करवाने लगा। तो डिलीट अगर आपको रिकॉर्ड करना हो बटन लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी सेट कर लें। डिलीट के कोड में बस हमारी क्यूरी जो है वो चेंज होगी। डिलीट की क्यूरी हम लगा देंगे, बाकी ऑलमोस्ट कोड हमारा सारा सेम ही होगा जो इंसर्ट का होता है। तो क्यूरी हमने चेंज करनी है। ऐसे इंसर्ट के लिए हमने ये काम किया था। मैं अभी फ़िलहाल इस सारे कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और कनेक्शन स्ट्रिंग हमें वैसे ही चाहिए, कनेक्शन वैसे ही होगा। एक आईडी का हमने ले लिया वेरिएबल, नेम वगैरह लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना, हमें डिलीट करना। आईडी के अगेंस्ट हम डिलीट करेंगे, नेम को, सिटी को, इसको हम डिलीट कर देते हैं। क्यूरी को हम चेंज कर रहे हैं, क्यूरी हमारे पास डिलीट किया जाएगी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमने क्या रखा था? tbl std और आगे हम वेयर कंडीशन जो है वो लाजमी देंगे। अगर आपने वेयर ना दी तो हम उसको डिलीट कर देंगे। वेयर और कॉलम नेम आएगा। कॉलम नेम देख लेते हैं कि जी हमने क्या रखा हुआ था, SID होगा आई थिंक। std id where std id equals to, और आगे आप यहाँ पर या तो पैरामीटर दे दें, ठीक है, @id और पैरामीटर्स जो हैं पर ऐड करा लेते हैं। आईडी और उसकी वैल्यू हमने आईडी से दे देनी है। पैरामीटर हमारे पास आईडी है और वेरिएबल जो है वो भी हमारे पास आईडी है। कनेक्शन को ओपन करें, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी मेथड को कॉल कर लें। अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज हम प्रिंट करा रहे हैं। अगर चाहो तो आप इफ कंडीशन वगैरह भी साथ लगा सकते हो। इफ एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ग्रेटर देन 0 अगर आपको कोई रिटर्न करे तो इट मीन्स कि कोई रिकॉर्ड जो है वो आपका डिलीट हो गया है। और एल्स अगर आप चाहें तो आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। डाटा एक दफ़ा देख लेंगे क्या क्या था इसके अंदर ताकि उसके साथ में उसको डिलीट करें। शो टेबल डाटा, एक रिकॉर्ड पड़ा 101, चलो एक आधा और डाल देते हैं 102। वैसे वहाँ से भी इंसर्ट करवाया जा सकता है, यहाँ से हम इंसर्ट करा दें, रन करते हैं। वन 101 और इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड हमारा डिलीटेड। और अब अगर आप आएंगे यहाँ पर अपने टेबल को रिफ्रेश करके देखना, ठीक है, वो रिकॉर्ड 101 जो है वो डिलीट हो गया।
اچھا جو اپڈیٹ ہے، اپڈیٹ بھی سیم ایسے ہی کام کرنا ہے آپ نے، کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے، صرف کیوری جو ہے وہ آپ کی اپڈیٹ کی بھی چینج ہو جائے گی. HTML کر دیں اپڈیٹ نیمز کا BTN اپڈیٹ. فارم سلیکٹڈ تھا، فارم کا نیم اس نے BTN اپڈیٹ کر دیا. فارم نہیں کرتے ہیں اور اس کا نیم ہے BTN اپڈیٹ. اس کو ڈیلیٹ کریں. اچھا اب اپڈیٹ پر بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے سارا، بس کیوری کا ہی چینج آئے گا، اس کی کیوری ہماری اپڈیٹ کی آ جائے گی. کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے رول نمبر دیا ہے یا آئی ڈی دیا ہے، فار ایگزامپل 101، اس کا نام اگر پہلے علی تھا، اب آپ اس کو چینج کر کے فار ایگزامپل احمد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا سٹی پہلے بھاولپور تھا، اب آپ اس کو جو ہے کوئی اور سٹی دینا چاہ رہے ہیں، تو ایک جو بھی ہمارا اسپیسیفک ایک پرائمری کی ایٹریبیوٹ ہے اس کے اگینسٹ ہم نے ریکارڈ کو اپڈیٹ کروا دینا، نئے ویلیوز کے ساتھ آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا. تو اس کے لیے آپ کی کیوری جو ہے وہ اپڈیٹ کی ہو جائے گی. آپ کو کنیکشن اسٹرنگ چاہیے، کنیکشن چاہیے، رول نمبر آئی ڈی جو ہے وہ آپ اٹھائیں گے، اور اب آپ اس کا نیم وغیرہ جو ہے وہ بھی اب آپ اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں نیو نیم اس نے کیا دیا ہو، نیم بھی ہے اور سٹی بھی ہے. تو یہ ہم لے لیں گے نیم والی فیلڈ کے اندر ہم txt name ڈاٹ ٹیکسٹ اس کی ویلیو لے لیتے ہیں، اور سٹی کے اندر ہم جو ہے txt city ڈاٹ ٹیکسٹ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. کیوری اب ہماری بن جائے گی اپڈیٹ ٹیبل نیم tbl std set. پہلا کالم نیم ہے جی ہمارے پاس، جس کو ہم نے چینج کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ نیم، std name equals to آگے پیرامیٹر دے دو s name کوما سیکنڈ ہے ہمارے پاس std city equals to at scity. آگے ہم ویئر کلاس جو ہے وہ لازمی لگائیں گے، ادروائز اس تمام روز کو اپڈیٹ کر دے گا ویئر. اور کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ویئر کے اندر جب آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں یا ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو ویئر کے اندر جو ہے وہ آپ پرائمری کی والے ایٹریبیوٹ کو یوز کریں، تاکہ وہ ڈیلیشن یا اپڈیشن صرف ایک ہی رو میں ہو جس رو میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی اور ایٹریبیوٹ یوز کر لیا پھر ہو سکتا ہے ملٹیپل روز کے اوپر چینجنگ ہو. جیسے آپ نے کہا کہ جی ویئر، آپ نے کہا کہ جی اس کا سٹی یہ کر دو، سٹی چینج کر دو، ویئر نیم ایکوس ٹو فار ایگزامپل علی، تو جو اسٹوڈنٹس جن کا نام علی آ رہا ہوگا ان سب کا سٹی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اس لیے ہم جو ہے اپڈیشن میں اور ڈیلیشن میں ہم نارملی پرائمری کی ایٹریبیوٹ کو یوز کرتے ہیں. جو آئی ڈی ہم دیں گے اس کے اگینسٹ آپ جو بھی نیا آپ نیم دیں گے یا سٹی دیں گے وہ اس کو اپڈیٹ کر دے گا. ویئر ایس آئی ڈی ایکوس ٹو ایٹ ایس آئی ڈی کر دیتے ہیں. پیرامیٹرس جو ہم نے ایڈ کی ان کی ویلیوز جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں SQL cmd ڈاٹ پیرامیٹرز ڈاٹ ایڈ ود ویلیو، اور یہاں پر ہم پہلا پیرامیٹر دے رہے ہیں ایٹ ایس نیم، اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں نیم سے، ساتھ ہی جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں SQL cmd ڈاٹ پیرامیٹر ڈاٹ ایڈ ود ویلیو. سیکنڈ پیرامیٹر ہمارے پاس ایس سی ڈی، ٹھیک ہے، اور اس کی ویلیو سٹی والے ویریبل سے لے لیں گے. یہاں پر آپ لگا دیں ڈیٹڈ کا میسج، ٹھیک ہے. اس کی ہماری کیوری ہو جائے گی. اور جیسے ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے اسی کو ہم چیک کر لیتے ہیں، عثمان نام تھا اس کا، ملتان سٹی رکھا تھا،
उस्मान और मुल्तान। चलो इसको हम अपडेट करते हैं 102 को 102 और मैं आप उसका नाम कर देता हूँ अमजद और सिटी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल रावल। तो वो हमने SID की हमने वैल्यू दी थी। स्केलर वेरिएबल का जब भी आपको एरर देना तो इसका मतलब यह है कि आपने जो पैरामीटर्स आपने ऐड किए थे ना उनके में से कोई मिस हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने पैरामीटर रखा था SID लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड कराया ID को, यहाँ पर SID आप इसको सही कर लें। वो कहता है कि इसकी पैरामीटर की वैल्यू जो है वो स्केलर वेरिएबल की वैल्यू उसको नहीं मिल सकी। तो 102 नेम फॉर एग्जांपल उसका न्यू नेम जो है वो हम अमजद रख रहे हैं RWP ठीक है। और इसी को आप जाके डेटाबेस में रिफ्रेश करके आप इसको चेक कर लें। ठीक है अमजद हो गया और रावलपिंडी उसका जो है वो सिटी हो गया। तो अपडेट हो जाएगा ऐसे। व्यू जो है वो हमने पहले किया था, इसमें हमने व्यू ऑल कराया था। ठीक है तो आप 1 बाय 1 भी रिकॉर्ड्स को व्यू करवा सकते हैं। 1 बाय 1 अगर आपने रिकॉर्ड्स को व्यू करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ बटन्स ऐड कर लेते हैं। सपोज नेक्स्ट प्रीवियस का बटन जो है मैं ऐड कर रहा हूँ। नहीं अपने इधर ही जैसे आप नेक्स्ट प्रीवियस के बटन लगा लें, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड आपका नेक्स्ट स्टूडेंट का शो हो जाएगा, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस स्टूडेंट का आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 1 बाय 1 इधर शो हो रहे हैं। ग्रिड के अंदर तो वो आपको तमाम के तमाम शो करा देता ना इकट्ठे, तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 हो जाएगा। इसका टेक्स्ट मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, चलो मैंने इसको ये टेक्स्ट कर दिया। इसका टेक्स्ट जो है हम ये कर देते हैं और नेम जो है वो हम कर देते हैं BTN नेक्स्ट। अच्छा अब हमने नेक्स्ट प्रीवियस रिकॉर्ड को करना है। तो इसका तकरीबन काम तो वैसे ही है कि जैसे हमने रिकॉर्ड ऑल व्यू हमने कराया था ग्रिड के अंदर। तो इसका क्योंकि हमने सब सारा डाटा रिट्रीव तो करना है, पहले रिट्रीव करके हम डाटा टेबल में डाल लेंगे और डाटा टेबल में डालने के बाद फिर हम यहाँ से रिकॉर्ड को 1 बाय 1 जो है वहाँ पे यूज़र की स्क्रीन के ऊपर हम उसको डिस्प्ले करें। ठीक तो व्यू का हमने इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो व्यू का हम काम करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि बटन अलग अलग हैं, इनके ऊपर मुझे कोडिंग करनी है। नेक्स्ट का अलग है, प्रीवियस का अलग है, तो इसके लिए हम कुछ ग्लोबल जो है कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे कि हम डाटा टेबल ले लेते हैं ग्लोबल डाटा टेबल DT में इसका नाम रख रहा हूँ। SQL डाटा अडॉप्टर चाहिए होगा हमें, SQL DA, उसको भी हमने ग्लोबल ले लिया। और कुछ वेरिएबल्स हमें इंटीजर में चाहिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ले रहा हूँ करंट रिकॉर्ड का वेरिएबल, करंट रिकॉर्ड एक मैं ले रहा हूँ टोटल रिकॉर्ड। ठीक है ये हमने कुछ वेरिएबल्स जो है ये हमने ग्लोबली ले लिए। और मैं इधर एक मेथड बना रहा हूँ प्राइवेट वॉइड, इस मेथड का नाम मैं रख रहा हूँ इनिशियलाइज डाटा। ये मैं एक मेथड बनाया इनिशियलाइज डाटा, ये हमने एक मेथड बनाया। और यहाँ पर हम उसी तरह से कनेक्शन ले लेते हैं। कनेक्शन तो क्योंकि हमें हर उसके लिए चाहिए होता है। कनेक्शन को बार बार मुख्तलिफ इवेंट हैंडलर के पीछे लेके जाना ये भी ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि हम ज़रा चीज़ों को ज़रा सिंपल रख लें, इसलिए मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इसको एक अलग क्लास के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग बना के रख सकते हैं और जहाँ ज़रूरत हो आप उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। वो आगे चल के फिर मैं आपको बता दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे एक क्यूरी चाहिए जो तमाम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगी डेटाबेस से। हमारे पास स्ट्रिंग हम बना रहे हैं str cmd और स्ट्रिंग है हमारे पास select staring from, टेबल का नाम हमने रखा था tbl std।
ریکارڈ جب ہم نے سارے ریٹریو کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹا اڈاپٹر چاہیے، ڈیٹا ٹیبل چاہیے. تو میں یہاں پہ ڈیٹا اڈاپٹر جو تھا میں اس کو انیشلائز کرا رہا ہوں SQL DA equals to new SQL ڈیٹا اڈاپٹر، اور اس کے اندر ہم کیوری پاس کر لیتے ہیں. یہ جو اس کے ڈفرینٹ کنسٹرکٹر ہیں تھرڈ ون کو ہم یوز کر لیتے ہیں. اس میں ہم اسٹرنگ کے اندر کمانڈ ٹیکسٹ دیں گے، وہ strcmd میں ہے، اور کنیکشن چاہیے ہمیں، وہ SQL کنیکشن ہے ہمارے پاس SQL com. ٹھیک ہے، اور ہم ٹرائی کیچ بلاک میں آ جاتے ہیں. اور یہاں پہ میں اس کو کنکیٹینیٹ کرا رہا ہوں ASP.message کے ساتھ. فائنلی SQL connection dot rows. چلو یہاں پر آ جائیں. اب ہم نے کیا کام کرنا ہے، تو ڈیٹا ٹیبل کا بھی کنکریٹ آبجیکٹ ہم بنا لیتے ہیں. ڈیٹا ٹیبل DT میں نے اس کا نام رکھا تھا equals to new ڈیٹا ٹیبل. کنیکشن کو اوپن کریں، اور SQL DA کو یوز کرتے ہوئے اس کا فل میتھڈ کال کرتے ہیں. اور فل ہم نے کس میں کرانا ہے، ڈیٹا ٹیبل کے اندر ہم اس کو فل کرا دیتے ہیں. DT کے اندر ہمارے ریکارڈ سارے فل ہو جائیں گے. ڈیٹا ٹیبل کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹوٹل ریکارڈ آئے کتنے ہیں، تاکہ ہم اسی حساب سے نیکسٹ پریویس کو جو ہے وہ ہم ریکارڈس کو ویو کریں. تو جیسے ہی ریکارڈ ہمارے پاس DT کے اندر آ جائے گا تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ریکارڈس کتنے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک ویریبل گلوبلی ڈکلیئر کرا لیا تھا ٹوٹل ریکارڈ کا. تو ہم اس کو کیسے ریٹریو کریں گے، اس کی ویلیو ہم لکھیں گے DT ڈاٹ روز کی کلیکشن پراپرٹی روز ڈاٹ کاؤنٹ. ٹوٹل ریکارڈ ہمیں مل جائیں گے، اور ساتھ ہی یہاں پہ میں کرنٹ ریکارڈ جو ہے ہمارا اس کی ویلیو میں 0 کر دوں. ٹھیک ہے، یہ انیشلائز کا ہم نے میتھڈ بنا لیا. اس کو ہم کال کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس کو لوڈ ایونٹ کے اوپر کال کریں گے، اور یہاں پہ میں ایک میتھڈ اور بنا رہا ہوں، اور وہ میتھڈ ہے ہمارا پرائیویٹ وائڈ شو ڈیٹا. یہ میتھڈ صرف ڈیٹا کو ڈسپلے کروائے گا ڈیٹا ٹیبل میں سے اٹھا کر ان فیلڈز کے اندر. ٹھیک ہے، جو فیلڈز ہم نے کون کون سی لگائی ہوئی ہیں، TXT اسٹوڈنٹ ID ہے ہمارے پاس، ڈاٹ ٹیکسٹ ایکولس ٹو ڈیٹا ٹیبل DT. اب دیکھو مجھے یہاں پہ DT کو یوز کرنا تھا، DT کو انیشلائز میں نے اوپر کرایا اور یوز میں اس کو یہاں کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کو گلوبلی ڈکلیئر کرا لیا. اگر میں اوپر ڈکلیئر کراتا اپنے اس میتھڈ کے اندر تو پھر وہ صرف اس میتھڈ کی حد تک وہ آپ کو اویلیبل ہوتا. ہاں بالکل، اس کا اسکوپ یا ایکسیسیبلٹی تو صرف اس میتھڈ کی حد تک ہوتی، تو آپ اس کو کہیں اور یوز نہ کر سکتے. تو میں نے یہاں پہ لے لیا جی TXT اسٹوڈنٹ ID ڈاٹ ٹیکسٹ ایکولس ٹو DT میں ہمارا ڈیٹا ٹیبل ہے ڈاٹ روز. اچھا روز میں سے کون سی رو، یہاں پہ آپ اس کا انڈیکس بتائیں گے. میں کہتا ہوں کرنٹ ریکارڈ. یہ بیسیکلی ڈیٹا ٹیبل جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ورچوئل ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک پوائنٹر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. اس پوائنٹر کو آپ موو کرتے جائیں گے، اور جیسے کرنٹ ریکارڈ ابھی میں نے اس کی ویلیو 0 کرائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی رو ہے آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں، اس کی بات آپ کر رہے ہیں. اب پہلی رو کے اندر 3 کالم ہوں گے، کیونکہ ہماری ٹیبل کے اندر 3 کالم تھے، اور میں نے کیوری جو بنائی ہے میں نے سلیکٹ اسٹیٹک لگایا تھا، اس لیے تمام کے تمام کالمز آئیں گے. تو پہلی رو کے اندر 3 کالم ہے، تو یہ جو پہلا ہمارے پاس جی، تو جو ہمارے پاس پہلی جو رو ہے اس کا پہلا کالم، اس کی ویلیو کو میں ادھر ڈسپلے کرانا چاہ رہا ہوں. تو یا تو آپ کالم کا نیم دے دیں یا آپ کالم کا انڈیکس مینشن کر دیں. تو یہاں پہ کالم کا نیم دے رہا ہوں STD ID، اور اس کو آپ کو اسٹرنگ کنورٹ کروا دیں. ٹھیک ہے، یہی میتھڈ آپ یوز کریں گے TXT name ڈاٹ ٹیکسٹ equals to DT ڈاٹ روز. اور روز میں سے کون سی رو جی، کرنٹ ریکارڈ والی رو، اور اس کے اندر سے کالم کون سا کالم ہے جی ہمارے پاس
std name डॉट टू स्ट्रिंग, और इसी तरह से आपने सिटी भी ले ली, dt डॉट rows करंट रिकॉर्ड के अंदर std ct डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये मेथड सिर्फ करंट रिकॉर्ड वाली वैल्यू को लेगा। जैसे करंट रिकॉर्ड की वैल्यू अगर 0 है, करंट रिकॉर्ड की अगर वैल्यू 0 है तो ये 0 इंडेक्स वाली रो की वैल्यू को उठा के आगे फिल कर देगा। अगर करंट रिकॉर्ड की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 वाली रो को फिल कर देगा, ठीक है। और इन दोनों मेथड्स को हम फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर कॉल कर रहे हैं। लोड पर पहले मैं इनिशियलाइज डाटा को कॉल करता हूँ, इनिशियलाइज डाटा जब कॉल होगा तो सारा रिकॉर्ड रिट्रीव होगा और डाटा टेबल तक पहुंच जाएगा। आगे मैं फिल डाटा या शो डाटा का मैंने मेथड बनाया था, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, और ये क्या काम करेगा, ये 0 इंडेक्स वाले रिकॉर्ड को फिल कर देगा, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज के वाले मेथड के अंदर मैंने करंट रिकॉर्ड की वैल्यू 0 करा लिया। ये देखो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज में करंट रिकॉर्ड मैंने 0 करा लिया। इसका मतलब ये है कि जब फॉर्म हमारा लोड होगा तो पहली रो के डाटा को उस फॉर्म के अंदर शो कर रहा होगा। ये एक ही रो थी ना हमारे पास, तो उसके डाटा को उसके अंदर शो कर रहा है। चलो अच्छा, मैं इसके अंदर कुछ रोज और डाल लेता हूँ, तो वैसे यहाँ से मैं डाल लेता हूँ। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल 103, उसका नाम हम रख रहे हैं जी हुसैन भावलपुर, 104 तारिक इस्लामाबाद। इसको हमने सेव कर, ये पहला रिकॉर्ड जो है वो हमें शो कर रहा होगा। अभी इनके तो हमने कोई कोड नहीं किया, तो यहाँ पे तो काम कुछ भी नहीं होगा, तो हमने लोड इवेंट के हमने शो कराया। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर आप चाहते हैं शो करना तो उसका काम बड़ा आसान सा कोड है। तो इसके ऊपर आप आएँ और यहाँ पर आप करंट रिकॉर्ड जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल जो था उसके अंदर आप एक का इंक्रीमेंट करा लें। करंट रिकॉर्ड की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, और 1 कराने के बाद आप क्या काम करें, आप शो डाटा वाले मेथड को कॉल कर लें। अब शो डाटा वाले ने क्या काम करना है, करंट रिकॉर्ड की वैल्यू जो 1 है तो 1 इंडेक्स वाली जो रो होगी उसका डाटा उसका डिस्प्ले करा देना है। ये मैंने नेक्स्ट के बटन कोड को कोड किया, ये सारा डाटा हमने उठा लिया। अब हमें नेक्स्ट पे कोई ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगला स्टूडेंट आ गया, उससे अगला यहाँ पर अब आपको वो एक एक्सेप्शन देगा। कौन? एक मिनट, अच्छा वो एक्सेप्शन दे रहा है। एक्सेप्शन उसने क्या दिया वो मैं आपको दिखाने से काम तवज्जो होगी मेरी। तो देखो 3 तक वो आ रहा है, और यहाँ पर आपको एक्सेप्शन देता है। अगर आप गौर से देखें, वो कहता है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, क्योंकि हम इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट करा रहे हैं ना प्लस प्लस करंट रिकॉर्ड के अंदर। अब उसको मैंने अगर 2 रोज डाली हुई हैं तो 0 इंडेक्स के ऊपर से रो मिल जाएगी, 1 इंडेक्स के ऊपर रो मिल जाएगी। जब इंडेक्स 2 होगा तो वहां पे तो कोई रो नहीं है, वो वहीं पर आपको एक्सेप्शन दे देगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चेक रखना है कि जो आप करंट रिकॉर्ड जो आपने शो करवाना है वो जितने टोटल रिकॉर्ड हैं, अगर उसका इंडेक्स उससे लेस रहता है तब तक वो शो करवाए, अदरवाइज वो आपको मैसेज दे दे कि भी एंड ऑफ रिकॉर्ड, या वो आपको पहले रिकॉर्ड के ऊपर ले जाए। तो ये काम आपको जो है वो अब करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा लेता हूँ, डायरेक्ट हमने यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ करंट रिकॉर्ड अगर लेस देन है करंट रिकॉर्ड की वैल्यू टोटल रिकॉर्ड से, क्योंकि अगर टोटल रिकॉर्ड हमें 3 रिट्रीव हुए तो करंट रिकॉर्ड की वैल्यू 0 1 2 इस तक चलना चाहिए। तो करंट रिकॉर्ड अगर 3 है तो उसके इंडेक्स 0 1 2 तक ही जाएंगे, उस तक इसे चलना चाहिए। हम कहते हैं कि करंट रिकॉर्ड के अंदर हम एक इंक्रीमेंट हम पहले कराएंगे, इंक्रीमेंट हम पहले कराते हैं, और इंक्रीमेंट कराने के बाद फिर हम कहेंगे कि अगर उसकी वैल्यू अभी भी लेस देन टोटल रिकॉर्ड है तो शो डाटा करा दो। एल्स क्या काम करो, एल्स मैं कहता हूँ कि करंट रिकॉर्ड की वैल्यू को 0 कर दो
और फिर से शो डाटा वाला मेथड कॉल करें। मैसेज बहुत भी शो करा के आप वहीं पर उसको रोक भी सकते हैं। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब वो आखिरी रिकॉर्ड पर मजीद नेक्स्ट करे तो वो पहले पर ले जाए। ठीक है, हमने कहा करंट रिकॉर्ड में का इंक्रीमेंट करो और उसके बाद करंट रिकॉर्ड की वैल्यू अगर लेस देन टोटल रिकॉर्ड है तो शो डाटा वाले मेथड को कॉल करो, अदरवाइज करंट रिकॉर्ड की वैल्यू 0 करके फिर शो डाटा को कॉल करो। ये मेरे ख्याल से लास्ट रिकॉर्ड है, फिर वो पहले गया। अब आपको एक्सेप्शन नहीं दे रहा कुछ। इस जैसे अगर आपने प्रीवियस पे के में काम करना है तो प्रीवियस पे आप क्या काम करेंगे, करंट रिकॉर्ड के अंदर आप एक का डिक्रीमेंट कर देंगे, करंट रिकॉर्ड माइनस माइनस और शो को कॉल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर आपको एरर मिलेगा कब, जब आप आखिर पहले रिकॉर्ड पर बैठे हुए हैं और अगर आप वो मजीद प्रीवियस कर दें। जैसे अभी मैं पहले पर हूँ, मैं अगर मजीद प्रीवियस करा दूंगा तो अभी करंट रिकॉर्ड की वैल्यू है 0। जैसे ही मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा करंट रिकॉर्ड माइनस माइनस होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब -1 एरे के अंदर कोई प्रॉपर इंडेक्स नहीं होता ना, वहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो आपको वहीं पर ही एक्सेप्शन रेज कर देगा। यहाँ पे फिर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी हम एक इफ कंडीशन लगा के चेक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट करा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि इफ करंट रिकॉर्ड की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन रहती है या इक्वल टू होती है 0 के, तो फिर तो शो डाटा को कॉल करो, एल्स करंट रिकॉर्ड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप पहले रिकॉर्ड पर हैं और मजीद प्रीवियस करें तो वो आखिरी रिकॉर्ड पे ले जाए। तो आखिरी रिकॉर्ड हमें कैसे मिलेगा, हाँ यहाँ पे करंट रिकॉर्ड की वैल्यू में करा देता हूँ टोटल रिकॉर्ड -1, क्योंकि करंट रिकॉर्ड में इंडेक्स आएगा, टोटल रिकॉर्ड में आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो उसको -1 करा दिया, टोटल रिकॉर्ड -1 और उसके बाद फिर हम शो को कॉल कर लेंगे। अब अगर आप पहले पर हैं मजीद प्रीवियस करेंगे तो आखिरी पे ले गया, आखिरी में बैठे हुए नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको पहले पे ले जाएगा। तो अब वो आपके एक्सेप्शन जो जनरेट हो रही थी वो अब आपकी नहीं होगी और 1 बाय 1 आप रिकॉर्ड्स को इस तरह से आप शो करेंगे। ठीक है जी, चलो इनको प्रैक्टिस कर लेना ज़रा।